नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण त्रेहन वास्तु विद्या मंदिर की तरफ से आज से आपके साथ वास्तु और फेंग शुई की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। कुछ वीडियोस जो नेचर से जुड़ी हुई हैं वो मैंने अभी यूट्यूब पे डाली हैं। आप उनको भी एज ए स्टोरी या एज ए बेस मैटर ज़रूर देखिएगा। उससे आगे इस सब्जेक्ट को समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इस कोर्स के अंदर हम वास्तु, फेंग शुई, ऑकल्ट साइंसेस के बारे में बातचीत करेंगे और वास्तु से आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कैसे कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी से वास्तु के उपाय कैसे कर सकते हैं और एक दूसरे को दोनों को कैसे मिला सकते हैं। हम इन चीज़ों को क्लब करके चलेंगे, वास्तु को भी और फेंग शुई को भी। अभी कुछ समय तक मैं आपको सिर्फ बेसिक स्लाइडें दिखाऊंगा जो मेरे 4-5 लेक्चर्स के अंदर कवर हो जाएंगी। इन स्लाइड्स को आपको नोट करना है क्योंकि आने वाले समय में हर चीज़ हमारी इसी के ऊपर निर्भर करेगी और इसी के थ्रू मैं आपको आगे अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इन चीज़ों के बेसिक प्रिंसिपल्स पूर्ण रूप से सिखा सकूं। ये कुछ स्लाइडें हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं, जो मैंने अपने बेसिक बसंत पंचमी के लेक्चर में डाली थी। इनको मैं स्किप कर दूंगा। ये आप मेरी पुरानी वीडियो के अंदर देख सकते हैं। Introduction to Vastu and Feng Shui. I am Dr. Arun Kumar Trehan. We will be more based on the applied part of Vastu, Feng Shui, numerology, astrology, Loshogid, etc. My main stress will be on understanding the principle और उन principles के द्वारा आपको किसी भी चीज़ का निवारण उपाय जो भी संभव हो वो बताना। You should preferably sit in the east or northeast and face east while worshipping or studying. Start your studies in a new notebook or worksheet. I welcome you all for sharing the knowledge in occult sciences. My main purpose is to share the knowledge which I have learned through my past 25 years from different books, from different writers, from different gurus, and from other sources. Aim will be on applied part only, and everybody is welcomed into this from newcomer to experts. It is a totally free interaction and no money transaction of any kind is permissible under any circumstances. Those who are interested can send me a mail on the mail given so that whenever I hold Zoom sessions, I will be able to coordinate in a better way. No personal horoscope or personal meeting is allowed under any circumstances. Vastu Vidya Mandir has no responsibility or legal binding on the results of the knowledge shared. It is for the benefit of the society. If it appeals you, you can accept it. Otherwise, you can reject it. Om Ganeshaya Namah. Now we'll shift to the subject matter. You just imagine if there were no numbers, no alphabets, no colors, no shapes, no sounds, how the life would be. If there was no sun, no wind, no water, no magnetism, no directions, how the life would be. Vastu is nothing but a science of harmonizing
one's atmosphere with sun's energy, earth's magnetism, different directions and Panch Tattvas. Maintaining their balance is what is really required. There are different definitions given by different people. Harmonizing human being in relation to building or working unit, keeping in mind the cosmic influence of sun, whose heat and light is useful, directions, earth magnetism, influence of planets on earth. Panch Mahabhutas. Art of correct setting to achieve the maximum benefit of Panch Mahabhutas in relation with earth and surroundings. The Panch Mahabhutas are Prithvi, Jal, Agni, Vayu and Akash. The importance of Vastu is being realized and revived again because of the hardship of mankind is facing these days at physical, mental, emotional and spiritual levels. All the Panch Mahabhutas in a balanced state can make a house into a relaxing unit and a prosperous unit. What has been missing in our units in present time is the Akash Tattva. Earlier, there used to be, the houses used to be open, all four sides used to be open. सेंटर में हमारे आंगन होता था, आंगन में तुलसी पड़ी होती थी, आप आंगन में लेट के भी आकाश को देख सकते थे. तो अब ये चीज़ें धीरे धीरे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के कंसेप्ट के बाद जैसे जैसे हम छतें नीची करते जा रहे हैं, 8 साढ़े 8 फुट के ऊपर डल रही हैं, आकाश तत्व टोटली खत्म हो गया है. और हमारे जितने पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चारों के चारों आकाश के द्वारा ही उसी के अंदर समाये हुए हैं. और जैसे जैसे आकाश की कमी हो रही है तो इनका भी बैलेंस बिगड़ता जा रहा है. और इसके ऊपर से जल का प्रदूषित होना, वायु का प्रदूषित होना, अग्नि का प्रदूषित होना, ये सब, और पृथ्वी के ऊपर भी ज़रूरत से ज़्यादा कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का ऐड ऑन होना हमारी वास्तु दोष को बढ़ाता चला जा रहा है. मैंने अपनी वास्तु रामायण से सीखी, पुराणों से सीखी, वेदों के द्वारा सीखी. आप गीता प्रेस की रामायण के 2 अंक पढ़िए, कोई भी वास्तु का ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जो उसके अंदर नहीं पेश किया गया. सिर्फ ये है कि आपको उसको वास्तु की दृष्टि से पढ़ना पड़ेगा. और जो भी हमारे मेजर प्रिंसिपल्स हैं आने वाले समय में आप रियलाइज़ करेंगे. और मैं आपको उस दोनों जो ग्रंथ हैं उनके अंदर से जहाँ जहाँ पर ही है उसका भी एक चार्ट आपको आने वाले समय में देने की कोशिश करूँगा. हमारे जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम अर्थ. जल से सबकी बुद्धि और जीवन का रक्षा होती है, वाटर इज लाइफ. अग्नि सबको जलाती है या सबका रूप बदलती है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर एंड देन अगेन कंडेंसेशन. वायु एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, पवित्र करती है. और द एयर प्योरीफाइज एवरीथिंग विच इज पॉल्यूटेड या जो प्रदूषित हो चुकी है. आकाश अनुग्रहित करता है, ग्रेटफुल है, ऑब्लाइजिंग है, गॉड्स अम्ब्रेला है, जिसके अंदर ये सारे हमारे बाकी तत्व और हम ह्यूमन बीइंग भी समाये हुए हैं. In our modern world, as I've already explained, it is the Akash element which is getting reduced gradually and leading to the physical, mental and spiritual level troubles in different personalities. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहले हमारे आंगन होते थे, आंगन में तुलसी होती थी, ब्रह्म स्थान खुला होता था, आसपास चारों तरफ हमारे खुली जगह होती थी. जिस भी बिल्डिंग के चारों तरफ खुला स्थान होता है या चारों तरफ सड़क होती है या रास्ता होता है, उसके ऊपर वास्तु दोष बहुत कम लगता है. हमारा वास्तु दोष शुरू ही तभी होता है जब हम उसकी 4 दीवारी कर देते हैं. पुराने समय में अगर आप देखते थे तो खेतों के अंदर कोई बाउंड्री नहीं होती थी, हर एक को पता होता था मेरी हद कौन सी है, और सब मिलजुल के खेती करते थे, कोई ज़्यादा वाद विवाद झगड़े नहीं होते थे. बट आज के समय में जैसे ही हमने बाउंड्रियाँ और वायरिंग करनी खींचनी शुरू करी है तो पृथ्वी से जुड़े हुए सारे हमारे झगड़े जो हैं वो वास्तु दोष के द्वारा बढ़ने लग गए. Without criticizing the great science astrology, Vastu is there to be seen, measured and believed. एस्ट्रोलॉजिकल डाटे को हम बदल नहीं सकते. आप जिस समय पे
जिस तारीख में जिस स्थान पे पैदा हो गए वो हमेशा फिक्स रहेगा। बट वास्तु एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम बदल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी हमारे पूर्व कर्मों से जुड़ी हुई है, उसी के अनुसार कुछ हद तक हमें वास्तु का भी घर उसी अनुसार मिलता है। बट वास्तु के अंदर समय के अनुसार चेंजेस करके हम डेफिनेटली अपनी ज्योतिष की दशा को भी, अगर वो हमें कुछ तंग कर रही है तो हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, उसको बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अब हमारे बुजुर्ग लोग जिन्होंने बड़ा सादा जीवन जिया, बड़े सादे घर में रहते थे, जब मैं प्रैक्टिकल लेवल पे किसी की वास्तु करने जाता हूँ तो वहाँ पे यही सवाल उठता है कि हम इस घर में बहुत सुखी रहे, सब बहुत अच्छा रहता था, अब ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या वास्तु दोष इसके अंदर आ गया कि जो आपको सब कुछ बदलना पड़ रहा है। कई बार वास्तु दोष ऑलरेडी घर में होता है बट आपको उसका प्रभाव पता नहीं लगता, क्योंकि आपकी ज्योतिष की दशा बड़ी अच्छी होती है और वो उस वास्तु के दोष को भी ओवर पावर कर लेती है। बट समय आने पर जब आपकी एस्ट्रोलॉजिकल दशा भी खराब हो जाती है, तब ये दोनों विद्याएं एक दूसरे के साथ जुड़ के वो आपके रिजल्ट्स को खराब करती हैं। रिजल्ट इज 100% इफ बोथ आर गुड, रिजल्ट इज 50% इफ वन इज गुड एंड द अदर इज बैड, एंड सो ऑन। Besides rectifying the Vastu dosh, one must try to dilute the bad effects of astrological dasha also. वास्तु का तो हम दोष ठीक कर देंगे, ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बट साथ के साथ अगर आप ज्योतिष की भी दशा को स्टडी करते हैं और उसको भी पूजा पाठ द्वारा, दान पुण्य द्वारा, मंत्रों द्वारा, या जो भी आपसे दशा से जुड़े हुए आपके संबंधी आपके घर में रहते हैं, उनके आशीर्वाद द्वारा आप उसको भी डाइल्यूट कर सकते हैं, जिससे कि आपको दोनों को मिला के बड़े अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना होती है। बिसाइड्स द पंच तत्वास जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं, इसके अलावा भी हमारी बहुत सी चीज़ों का रोल होता है। रोल ऑफ सन जो कि मेन हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, रोल ऑफ डायरेक्शंस, हमारी जो दिशाएं हैं, आने वाले मैं हर इस सब्जेक्ट के ऊपर अलग से लेक्चर लूँगा। रोल ऑफ प्लैनेट्स, रोल ऑफ गॉड्स, रोल ऑफ मैग्नेटिज्म, रोल ऑफ कलर्स, प्लेसमेंट ऑफ गुड्स एटसेट्रा। सो आने वाले समय में मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सूर्य, डायरेक्शन, मैग्नेटिज्म आदि के बारे में बात करूंगा। सो आज के जो मेरे लेक्चर का मेन मुद्दा था वो यही था कि आपको वास्तु क्या है, वास्तु में हम तत्वों को अधिक महत्व क्यों देते हैं, और वास्तु में और कौन सी हमारी चीज़ें जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये बताना था। आने वाले समय में जब 5-6 लेक्चर हमारे हो जाएंगे, उसके बाद में मेरी पूर्ण कोशिश होगी कि मैं आपके साथ व्हाट्सएप या जूम या किसी भी मीडिया के द्वारा आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करूँगा। बट वो उन्हीं के लिए होगी जो कि मुझे पहले से मेल करेंगे, और जो मेल का एड्रेस मैं आपको ऑलरेडी इसमें दे चुका हूँ। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, धन्यवाद।